Good afternoon, friends. Once again, welcome back. So, it has been now a regular and a long association as far as our interaction is concerned. Again, I am sure that all of you are good and healthy and you are doing well. So, as we are discussing for the last four discussions or four series, that we were focusing upon the different aspects about how the transformation occurred from ancient history to the medieval history. How the transformation occurred from ancient history to medieval history. And then once this transformation which we saw, then we saw that how the medieval Indian history started progressing, and how basically Delhi Sultanate was established. And now, since the last two classes, we are discussing about the different Delhi Sultans and their achievements. And I am definitely sure, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आ रहा है, आपको प्रोसेस पूरी पता चल रही है, सीक्वेंस पूरा पता चल रहा है, ठीक है, और कैसे एक के बाद एक सुल्तान आके हाउ दे बेसिकली ट्रांसफॉर्म द वेरी लुक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग medieval period. So again, interesting and all important aspects we will continue in today's interaction also. So continuing with that, now we will come to the next dynasty of Delhi Sultanate, because as a part of our interaction we were discussing about different dynasties of Delhi Sultanate. हम लोग अलग अलग डायनेस्टीज को देख रहे थे, और जैसे कि हम बात कर रहे थे तुगलक डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट देखी थी, ठीक, और तुगलक डायनेस्टी के एस्टैब्लिशमेंट के बाद उनके जो सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में भी हमने देखा था, है? उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में भी हमने देखा था, ठीक। तो अभी उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करना है, और हमने ये भी देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक उन्होंने जो जो डिसीजन लिए थे, द डिसीजंस विच वर टेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक, how these decisions had backfired in the case of Delhi Sultanate and its population, how these decisions had become a failure with respect to the population of Delhi Sultanate. So in this context, now we have to see, I had ended the discussion, मैंने बताया था आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक की गलत पॉलिसियों की वजह से पूरे एम्पायर में रिवॉल्ट होने लगे थे। मैंने ये भी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनके अंडर पूरा दिल्ली सल्तनत जो है फैल चुका था, है? दिल्ली सल्तनत का जो सबसे बड़ा एक्सपेंशन है वो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर ही हुआ था, और यही मोहम्मद बिन तुगलक है जिनके अंडर दिल्ली सल्तनत का विघटन भी शुरू हो गया, है? दिल्ली सल्तनत का विघटन जो होता है या दिल्ली सल्तनत का जो टूटना शुरू हो गया वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी that after Mohammed bin Tughlaq, Delhi Sultanate was under threat. Delhi Sultanate बहुत ही ज़्यादा खतरे में था, but still Delhi Sultanate was fortunate to get one more capable sultan. इसी तुगलक डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत को और एक कैपेबल सुल्तान मिल गए, जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, ठीक। तो आज हमें इनके बारे में कुछ रोचक बातें, टुडे वी हैव टू सी सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट फिरोज शाह तुगलक एंड हाउ बेसिकली he was able to reverse the trend of disintegration of the Delhi Sultanate, ठीक है। तो वही आज हम देखेंगे। तो अगर इनकी बात करते हैं जो हमारे सुल्तान है तुगलक डायनेस्टी के फिरोज शाह तुगलक, इनकी अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो अभी फिर हमें पता चलेगा कि फिरोज शाह तुगलक की जब हम बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि फिरोज शाह तुगलक जो थे वो दिल्ली के ऐसे एक सुल्तान थे, कि जिनको सारे सरदार और all the nobles they had chosen
or a kind of election was conducted to choose the Firoz Shah Tughlaq, and it was a very rare event. Okay? Because under Delhi Sultanate, what you will see that under Delhi Sultanate we will see that this was a very violent era. Delhi Sultanate, it was a very violent era. Okay? And practically it was not possible that any particular sultan is chosen by the nobles. Practically it was not possible that under Delhi Sultanate one sultan is chosen by the nobles. नोबल किसी को चुनेंगे ये बहुत ही रेयर बात थी, प्रैक्टिकली वो होता नहीं था। क्यों? जैसे मैंने बताया था कि हर कोई सुल्तान बनना चाहता था, उस समय हर कोई सुल्तान बनना चाहता था, ठीक है। बट फिर भी अभी हम देखेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक है उनको चूज किया गया था। फिरोज शाह जो तुगलक है उनको चूज किया गया था, ठीक है। तो इनको चूज क्यों किया गया था? तो इनको चूज करने का कारण ये है दैट मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही, और उनका जो कार्यकाल खत्म हो रहा था उसमें ही बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो रहे थे। और जैसे मैंने बताया दिल्ली सल्तनत थ्रेट में था और बहुत अनस्टेबल हो चुका था। तो ऐसे अनस्टेबल दिल्ली सल्तनत को, जहाँ पे हर कोई खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे हर कोई खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे दिल्ली सल्तनत में कोई भी नहीं चाहता था कि मैं सुल्तान बनूं। ऐसे दिल्ली सल्तनत में कोई भी नहीं चाहता था कि मैं सुल्तान बनूं, और बहुत ज़्यादा जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको डील करना पड़े। एंड सेकंड थिंग वाज दैट फिरोज शाह तुगलक ही वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स सुल्तान। दूसरी बात ये थी फिरोज शाह तुगलक ही वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स सुल्तान। एंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स द वन हु वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स फ्रॉम रिलीजियस परस्पेक्टिव, वन हु वुड फॉलो द इस्लाम, ठीक है, जो धार्मिक चीज़ों के मामले में एक कट्टरपंथी है और जो इस्लाम को जैसा इस्लाम है उसी तरह से इस्लाम को फॉलो करेंगे, ऐसे सुल्तान हमेशा प्रिफर किए जाते। मतलब उस समय में क्या होता था, जितने सरदार पावरफुल थे उतने ही जो हमारे इस्लाम को देखने वाले लोग थे, जो धर्म की चीज़ें जानने वाले लोग थे, जिसमें मौलवीज आ गए, मुल्लाज आ गए और काजीज आ गए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे जो धर्म के एक्सपर्ट थे, धर्म के बारे में जानकार थे। ऐसे लोग चाहते थे कि जो सुल्तान इस्लाम को फॉलो करे, जो सुल्तान इस्लाम की तरह राज्य को चलाए, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बात की थी दिल्ली सल्तनत इज अ इस्लामिक स्टेट, और दिल्ली सल्तनत वाज अ इस्लामिक स्टेट। So the sultan who is basically carrying on the administration and the political affairs according to the Islam and the principles of Sharia, or Hanafi principles, that kind of sultan was always preferred. So because of that you will see, due to his religious orthodoxy, due to Firoz Shah Tughlaq's religious orthodoxy and challenging situation, दूसरी बात क्या है, चैलेंजिंग सिचुएशन, इन दोनों चीजों की वजह से हम देखेंगे दैट फिरोज शाह तुगलक ही वाज मेड अ सुल्तान। इन दोनों चीजों की वजह से हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ही वाज मेड अ सुल्तान। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक याद रखना है, ही इज वेरी फेमस फॉर हिज वेलफेयर पॉलिसीज। ही ऑल्सो वाज वेरी सक्सेसफुल सुल्तान, बहुत ही कामयाब सुल्तान थे और वेलफेयर पॉलिसीज के लिए वो फेमस थे। मतलब जो गलतियां मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, जो गलतियां मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और जिसकी वजह से सारे जो दिल्ली सल्तनत के लोग नाराज हुए थे, जो दिल्ली सल्तनत में रहने वाले अलग अलग समाज के घटक और लोग नाराज हुए थे, उनको फिर से वापस दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ना, दिल्ली सल्तनत के बारे में उनको विश्वास दिलाना, ये सारी चीज़ें फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये सारी चीज़ें फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और उसकी वजह से उनकी जो वेलफेयर पॉलिसीज थी वो लोगों में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होगी। लोगों के कल्याण की जो चीज़ें थी, पब्लिक वेलफेयर मतलब क्या, वेलफेयर पॉलिसी का मतलब क्या है, लोक कल्याण की जो नीति थी
बहुत ही ज़्यादा लोगों को भा गई है और लोग फिरोज शाह तुगलक के साथ जुड़ गए है। एक पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत फिर से अच्छी तरीके से उभरने लगा है और फिर सोसाइटी या समाज का जो समर्थन रहता है अपने शासकों को, वो भी समर्थन आने लगा। तो ये उनकी कामयाबी है। तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक लोक कल्याण नीति या वेलफेयर पॉलिसी के लिए फेमस है। तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इनके बारे में देखेंगे कि इनकी लोक कल्याण नीति में क्या क्या था। ठीक है, तो हम देखेंगे पहली बात तो ध्यान में रखनी है, फिरोज शाह तुगलक की जो लोक कल्याण नीति है, उस लोक कल्याण नीति के जनक है और फादर ऑफ हिज वेलफेयर पॉलिसीज इज हिज फेमस वजीर। फिरोज शाह तुगलक had a famous wazir. His name was Khan ए जहान मकबूल। फिरोज शाह तुगलक he had a famous wazir. His name was Khan ए जहान मकबूल. He was originally a Hindu. वो मूलतः हिंदू थे, हिंदू ब्राह्मण थे। आपका जो आज का तेलंगाना नाम का जो हमारा राज्य है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दक्षिण भारत में, वहाँ से वो बिलोंग करते थे। बट ही हैड बीन कन्वर्टेड टू इस्लाम। उन्होंने इस्लाम में खुद को कन्वर्ट करके लिया था, मतलब उनको कहा गया था कि इस्लाम में आप कन्वर्ट हो जाओ, यानी वो कन्वर्ट हो चुके थे। फिर उनका जो नाम है, उनका नाम था खान ए जहान मकबूल। और वो उनका किताब क्या था, उनका पोस्ट क्या था, ही वॉज अ वजीर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिरोज शाह तुगलक। सारी लोक कल्याण की जो नीति है उन्होंने ही बनाई थी। ठीक, तो क्या क्या था उसमें, तो हम देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक जो थे, उन्होंने कृषि को फिर से अच्छी तरीके से बढ़ावा दिया। जो कृषि के सुधार मोहम्मद बिन तुगलक ला रहे थे और जो वो पूरी तरीके से ला नहीं पाए, उनके कृषि सुधार सक्सेस हो नहीं पाए थे, वो कृषि सुधार फिरोज शाह तुगलक ने अच्छी तरीके से कामयाब करके दिखाया। वही जो मोहम्मद बिन तुगलक का कृषि ये था आपका डिपार्टमेंट, कृषि जो उनका मंत्रालय था, जिसको हमने बोला दीवान ए आमिर ए कोही, जिसको हमने क्या बोला था, दीवान ए आमिर ए कोही। ठीक है, ये किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस दीवान ए आमिर ए कोही जो है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने और उसमें सुधार किए है और उसको अच्छी तरीके से मजबूत किया। उसमें काम करने अधिकारी जो थे या अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग जो था, उनको और सक्षम बनाया। एंड देन यू विल सी फिरोज शाह तुगलक he achieved the agricultural reforms through this Diwan e Amir e Kohi. Plus, along with agricultural reforms, Firoz Shah Tughlaq is very famous for irrigation development. Along with his agricultural reforms, Firoz Shah Tughlaq is very famous for irrigation development. So he went for having irrigation network. Firoz Shah Tughlaq, he went on to have the vast irrigation network. पूरा एक इरिगेशन नेटवर्क उन्होंने बनाया। तो बहुत सारे उन्होंने कैनल्स बनाए थे, बहुत सारे उन्होंने कैनल्स, ये जो कालवा के थे, वो कैनल्स उन्होंने बनाए थे फॉर इरिगेशन पर्पसेस। ठीक है, उसमें से दो कैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो कैनल है उसका नाम है उलूग काजी। एक जो कैनल है उसका नाम है उलूग काजी। ठीक है, जो कहाँ से आता था, सतलज नदी से आता था, सतलज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो हंसी नाम की एक जगह है हरियाणा में, हरियाणा में हंसी नाम की एक जगह है, वहां पे आता था। ठीक, उलूग काजी नाम का एक कैनल था, वो सतलज नदी से शुरू होके आपका हंसी में आता था। ये पहला उनका एक बहुत ही फेमस कैनल था इरिगेशन नेटवर्क के लिए। दूसरा जो कैनल था उसका नाम है, दूसरा जो कैनल है उसका नाम है राजवाही। राजवाही नाम का दूसरा एक कैनल था, राजवाही। वो कहां से होता था, हरियाणा में हिसार नाम की एक जगह है, हरियाणा में हिसार नाम की एक जगह है। तो हरियाणा में हिसार नाम की एक जगह है, वहां से वो निकलता था और फिर वो यमुना रिवर को जुड़ता था, फिर वो यमुना रिवर को जुड़ता था। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया था, हमारी जो इंडस या सिंधु नदी है, उस नदी
और उस नदी की जो उपनदियां है, और फिर हमारे गंगा नदी है, और वो गंगा नदी और उसकी उपनदियां है, इन सारों को जोड़ दिया था, है? दोनों जो भारत की प्रमुख नदियां है, सिंधु और गंगा, और उनकी जो अलग अलग उपनदियां है, ठीक है, और ट्रिब्यूटरीज जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज. सो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस एंड द गंगा, दे वर लिंक बाय फिरोज शाह तुगलक बाय दिस कैनल्स. और उससे क्या हुआ, कृषि और सिंचाई दोनों को बढ़ावा मिल गया है. फार्मर वाज नाउ हैप्पी. He also got tremendous amount of land revenue. He also got tremendous amount of land revenue. Okay? So this one also we have to keep in mind. Then further things we will see as a part of welfare. Okay? As a part of welfare, Firoz Shah Tughlaq, he started free hospitals. Okay? Free hospitals for all people in Delhi. Okay? He had started the free hospitals in Delhi, the capital, in those times. तो उसको हम क्या बोलते हैं, दर उल शिफा. इस हॉस्पिटल्स को हम क्या बोलते हैं, दर उल शिफा. बिल्कुल मुफ्त इलाज मिलेगा आपको, और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से. वेरी हाई क्वालिटी हेल्थ केयर यू विल गेट. तो आज जैसे हमारी बात होती रहती है राइट टू हेल्थ, आज हम अगर बात करते हैं आज के तारीख में, तो सरकार के बहुत सारे ऐसे डिसीजन है, उसके साथ साथ राइट टू हेल्थ की बात होती है. भारत के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य का जन्मजात अधिकार मिलना चाहिए. सो दिस राइट टू हेल्थ इज बीइंग डिस्कस्ड टुडे. उस समय लगभग वही चीज हो गई थी दिल्ली में. द पब्लिक हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स ऑफ द फिरोज शाह तुगलक, दे हैड ग्रांटेड राइट टू हेल्थ टू एवरी पर्सन फॉर अ फ्री हेल्थ केयर. देन उसके बाद he also started free marriage bureaus. Okay? Free marriage bureaus for marriage of poor Muslim girls. इसके लिए स्टार्ट किए थे, poor Muslim girls. ठीक, जो गरीब मुस्लिम लड़कियां थी और जिनकी डाउरी की वजह से शादी नहीं होती थी, जिनकी डाउरी की वजह से शादी डाउरी या हम क्या बोल सकते हैं उसको, ठीक, कि आपका जो शादी के समय है बहुत सारा पैसा वगैरह दूल्हे को दिया जाता है, वो जो डाउरी सिस्टम है, ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती. तो उसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ही स्टार्टेड द फ्री मैरिज ब्यूरोज फॉर द गर्ल्स, एंड एट द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ही विल मैरी ऑल द मुस्लिम गर्ल्स. सारी मुस्लिम गर्ल्स है वो, उनको सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, सरकार की तरफ से उनकी शादी होगी. तो ये पॉलिसी उन्होंने लाई थी, और इसकी वजह से वो लोकप्रिय हो रहे थे. फिर उन्होंने सब फ्री किचन चालू किया, फ्री किचन, ठीक, फॉर क्वालिटी फूड. ठीक, एंड टैकलिंग हंगर एंड स्टारवेशन. फिर हम देखेंगे कि जैसे उन्होंने हमारा फ्री हेल्थ केयर या हॉस्पिटल चालू किया था, राइट टू हेल्थ, वैसे लगभग एक राइट टू फूड भी आ गया था. है, खाना मिलने का अधिकार, सबको खाना मिलना ही चाहिए, कोई भूखा पेट नहीं सोना चाहिए. है, 2 स्क्वायर मील्स अ डे, वो भी अच्छा न्यूट्रिशियस खाना जो हेल्थ के लिए अच्छा हो. है, तो पावर्टी, हंगर और स्टारवेशन उसको कंट्रोल करने के लिए, पावर्टी, हंगर एंड स्टारवेशन उसको कंट्रोल करने के लिए सो कॉल्ड फ्री किचन्स उन्होंने स्टार्ट किया था. ठीक, और उस फ्री किचन को सपोर्ट करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आज भी हमारे पास होता है, पीडीएस, जिसको हम रेशन सिस्टम बोलते हैं, सबके पास रेशन कार्ड रहता है, राशन कार्ड रहता है. तो जो राशन रहता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उस जमाने में उन्होंने चालू किया था. तो बहुत ही सस्ते दाम में आपको अच्छा खाना मिलेगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का अनाज मिलेगा, धान मिलेगा. है, और उसके बाद फिर लोगों को उस अनाज का फ्री में खाना दिया जाएगा, मुफ्त में खाना दिया जाएगा. तो ये उन्होंने चालू किया था, और इसकी वजह से भी वो बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे. इसकी वजह से वो बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे. ठीक है, तो ये बात भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, ये बात भी हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है. फिर फिरोज शाह तुगलक जो है, उन्होंने लोगों को रोजगार देने के लिए, उन्होंने लोगों को रोजगार देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगवाई थी. इंडस्ट्री
और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, ठीक है, ये चालू किया था। क्यों? फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, प्लस ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो द रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। तो जब आपका इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, बहुत सारे लोग उसमें काम करेंगे, लोगों को भी रोजगार मिलेगा, और इन फैक्ट्रीज को जो मुनाफा होगा उससे सरकार को भी टैक्स मिलेगा, राजस्व मिलेगा, फॉर रेवेन्यू एंड टैक्सेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, इस इंडस्ट्रीज को? इस इंडस्ट्रीज का नाम था कारखाना। ठीक है, ये शब्द आपने सुना भी होगा, कारखाना। हमारे रोज के जीवन मान का इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है कारखाना। एक कारखाना भी चालू किया था। इसका मतलब क्या है? आप जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बुक्स में, है इंडिया का जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और उसमें फिर हम देखते हैं हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें एग्रीकल्चर आता है, और एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, अलाइड एक्टिविटीज, माइनिंग, सब कुछ आता है। सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी सेक्टर होता है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो फिरोज शाह तुगलक ने हमारा जो ये है, उस समय दिल्ली सल्तनत का जो इकोनॉमी था, उस समय दिल्ली सल्तनत की जो इकोनॉमी थी उसका पूरी तरीके से सभी मायने में विकास किया था, है? उन्होंने कृषि के ऊपर भी ध्यान दिया, मतलब प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। ही ऑल्सो फोकस अपॉन मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर, एंड ही ऑल्सो फोकस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, टर्शरी सेक्टर। So employment was also created, the revenue also increased, and the financial health of the empire improved. सबसे बड़ी बात क्या थी? एम्पायर की फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हुई थी। और ये क्यों जरूरी था? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक उनके गलत नीतियों की वजह से दिल्ली सल्तनत के फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा खराब हुए थे। लगभग दिल्ली सल्तनत बैंकरप्ट हो चुका था, ठीक है, और सरकार के खजाना में पैसा नहीं था, ये चीज़ आई हुई थी। तो ये सारा उन्होंने फिर से अच्छी तरीके से सब कुछ नीतियाँ अपना के सरकार के खजाने में पैसा वापस लाया, सरकार का खजाना बढ़ाया। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। दिल्ली शासन सल्तनत को भी एक अच्छे शासक मिल गए, और सुरक्षा भी प्रदान की गई, है, स्थिरता भी आ गई, सुरक्षा भी प्रदान की गई। और इन्हीं वजह से फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही सक्सेसफुल सुल्तान माने जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही कामयाब सुल्तान माने जाते हैं। अभी उनकी एक आखिरी बात देखते हैं। उनकी एक आखिरी बात हम देखेंगे। उन्होंने क्या किया? उनको बड़ी बड़ी सिटीज बिल्ड करने का शौक था, है? बड़ी बड़ी सिटी बिल्ड करने का शौक था। उनकी 5 फेमस सिटीज आज भी इंडिया में है, जिनमें अभी भी वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर रही है, लोग रहते हैं, और भी अच्छी तरीके से बड़ी हो रही है। एक आता है पंजाब में फिरोजपुर, फिरोजपुर जो हमारा पंजाब में है, ठीक, पंजाब मतलब इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर, यहाँ पे फिरोजपुर है। ये एक मिलिट्री कैंटोनमेंट है, ये एक मिलिट्री कैंटोनमेंट है, ठीक है, मिलिट्री टाउन है। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही उसको बसाया था, और मिलिट्री टाउन के दौर पे ही बसाया था, है? उस समय फिरोज शाह तुगलक ने ही इस टाउन को बसाया था, और मिलिट्री टाउन के दौर पर ही बसाया था। ये हमें ध्यान में रखना है। सेकंड सिटी इज जौनपुर, है, सेकंड सिटी इज जौनपुर। Jaunpur basically comes in Uttar Pradesh. Jaunpur lies in Uttar Pradesh. And today it is a very famous railway junction. Today it is very famous railway junction. But in those times it was established as a military town. Firoz Shah Tughlaq had established Jaunpur as a military town, but now it is famous railway junction. और उसको क्यों बनाया गया था? Why it was built? Basically, it was built in the memory of his own cousin Jauna Khan. Jaunpur was built in the memory of his own cousin Jauna Khan. और जौना खान कौन है? जौना खान फिरोज शाह तुगलक के कजिन थे, चचेरे भाई थे। पर जौना खान है कौन? जौना खान और कोई नहीं है, दूसरा तीसरा कोई नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक थे। है? मैंने उस टाइम ही बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जौना खान था। तो अपने चचेरे भाई जौना खान
यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी याद में जौनपुर बनाया गया था। फिर तीसरा जो है फिरोज शाह तुगलक का सिटी, वो आपका आता है फिरोजाबाद, जो कि हमारा आगरा के पास है। आगरा के पास है, आगरा भी यूपी में है, तो आगरा के पास फिरोजाबाद आता है। और फिरोजाबाद क्या था, एक मैन्युफैक्चरिंग टाउन था। जैसे हमने देखा कि फिरोज शाह तुगलक ने इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज चालू किया था, जिसको हम कारखाना बोलते हैं। तो फिरोजाबाद वाज लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग हब। आज भी फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, आपका बैंगल्स के लिए है, जो लड़कियां चूड़ी पहनती है उसके लिए फिरोजाबाद बहुत फेमस है। तो वो फिरोजाबाद उस समय भी ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था। तो उसके बाद और एक सिटी उन्होंने बिल्ड किया था, है? और एक जो सिटी बिल्ड किया था उसका नाम है हिसार फिरोज। ठीक है, हिसार फिरोज। आज हिसार हरियाणा में एक जिला है। टुडे हिसार इज अ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा एंड हिसार इज ऑल्सो सिटी इन हरियाणा। ठीक है, सो इट वॉज बिल्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया, वो जो पहला वाला हमने देखा था कि हिसार फिरोज से ही एक हमारा कैनल चालू किया था, हिसार फिरोज से ही हमारा एक कैनल निकाला गया था फिरोज शाह तुगलक की तरफ से। तो यही हिसार वो है जो हरियाणा में था। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और आखिरी जो फिरोज शाह तुगलक की फेमस सिटी है वो हमारे दिल्ली में ही है, जिसका नाम है कोटला फिरोज शाह। ठीक है, आखिरी जो हमारी सिटी है दिल्ली में, जिसका नाम है कोटला फिरोज शाह, जहाँ पे हमारा क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, उसके आसपास का जो एरिया है वही कोटला फिरोज शाह है, और वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सुल्तान सिर्फ कामयाब नहीं थे, अपनी याद में बहुत कुछ वो छोड़ के चले गए हैं, अपनी याद में बहुत कुछ छोड़ के चले गए हैं, ठीक, जिसको आज भी हम देख सकते हैं, आज भी उनकी जो कामयाबी है उसको महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आया होगा, ये रोचक बातें जैसे मैंने बताई हुई तो आपको लगा ही होगा कि ये बातें रोचक है। ठीक, तो ऐसे ही रोचक बातें हमारी चलती रहेगी। तो यहाँ पे हमारा फिरोज शाह तुगलक खत्म होता है, और फिर अगली रोचक बात करने के लिए हम अभी देखेंगे। तो अगली बात अभी क्या आएगी कि जैसे फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई 1388 में, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई 1388 में, और फिर दिल्ली सल्तनत कमजोर हुआ है, दिल्ली सल्तनत कमजोर हुआ फिर से। क्यों? क्योंकि फिर से फिरोज शाह तुगलक के बाद, फिर से फिरोज शाह तुगलक के बाद हमें दिखेगा एक सक्षम सुल्तान नहीं था, एक सक्षम सुल्तान दिल्ली सल्तनत को नहीं मिला था। ठीक है, सक्षम सुल्तान एक दिल्ली सल्तनत को नहीं मिला था। दिल्ली के सुल्तान बने थे अभी नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद जो है वो दिल्ली के सुल्तान बने थे, और इनके समय में हम देखेंगे, नसीरुद्दीन महमूद के समय में हम देखेंगे कि आमिर तैमूर जो कि मध्य एशिया से आए थे, अंडर नसीरुद्दीन महमूद वी विल सी आमिर तैमूर's इन्वेजन अकर्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आमिर तैमूर जो है उनका जो इन्वेजन है वो अभी हम देख सकते हैं आमिर तैमूर का। इन 1398 एडी आमिर तैमूर जो है उन्होंने 1398 में भारत पे आक्रमण किया था। 1398 में उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, और वो भारत के ऊपर आक्रमण करने के बाद हम क्या देखेंगे, वो आक्रमण भारत के ऊपर होने के बाद हम देखेंगे दैट वंस आमिर तैमूर इन्वेडेड इंडिया, वंस आमिर तैमूर इन्वेडेड इंडिया, then we will see that India and the Delhi Sultanate, its glory was gone. India and the Delhi Sultanate, its glory was gone. Alright, because of that, what happened? Delhi Sultanate continued for some time. Delhi Sultanate continued. Okay, yet what we will see that Delhi Sultanate had lost its glory. Delhi Sultanate
law had lost its glory. ठीक है, so this point we have to keep in mind. This point we have to keep in mind. And since Delhi Sultanate had lost its glory, ठीक है, since the Delhi Sultanate had lost its glory, so what we will witness? We will witness now the Amir Taimur. Amir Taimur, he basically appointed one of his governor in India. आमिर तैमूर ने क्या किया? आमिर तैमूर अपॉइंटेड वन ऑफ हिज गवर्नर इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में उन्होंने अपने गवर्नर को अपॉइंट किया था. और उसमें हमें क्या दिखेगा? हिज गवर्नर वाज खिजर खान. खिजर खान was the governor as far as the Amir Taimur is concerned. Khizr Khan was the governor of the Amir Taimur. And then you will see up to 1414, Khizr Khan remained as the governor of the Amir Taimur. Khizr Khan remained the governor of Amir Taimur in India. But once he saw that last Sultan of Delhi, he is very weak, so he overthrew the Tughlaq Sultan. He overthrew Tughlaq Sultan in 1414 and established fourth dynasty of Delhi Sultanate. Fourth dynasty of Delhi Sultanate, that is, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सईद डायनेस्टी. उसका नाम है सईद डायनेस्टी. ठीक है, जिसको हम सैयद डायनेस्टी भी कहते हैं. जिसको हम क्या कहते हैं? सैयद डायनेस्टी. तो सईद और सैयद डायनेस्टी, द फोर्थ डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय खिजर खान. ठीक, इस डायनेस्टी के बारे में दो ही बातें याद रखनी है. इस डायनेस्टी के बारे में दो ही बातें याद रखनी है. सईद डायनेस्टी जो है, या सैयद, जिसको हम सैयद डायनेस्टी कहते हैं, तो वो खुद को सैयद क्यों कहते थे या सईद क्यों कहते थे? तो सैयद या सईद शब्द का मतलब है that they are descendants of Prophet Muhammad. Right? They are descendant of the Prophet Muhammad. ठीक है, they are descendants of Prophet Muhammad and they are very pure. They are very pure. वो पवित्र है. सईद और सैयद means पवित्र. And they are descendants of Prophet Muhammad. That's why they used to call as a Sayyid or Sayyid as far as their own reference was concerned. और एक बात इनके बारे में याद रखनी है कि ये जो डायनेस्टी है, इनके अंडर एक आर्किटेक्चर का नया टेक्निक आ गया. ठीक है, आर्किटेक्चर का नया टेक्निक, न्यू टेक्निक ऑफ आर्किटेक्चर. वो क्या है? यूज ऑफ डबल डोम. यूज ऑफ डबल डोम. ठीक है, तो जो भी कोई आप इस्लामिक बिल्डिंग बिल्ड करोगे, जैसे मॉस्क हो गया, टॉम हो गया, ठीक है, उसको एक आपको डोम स्ट्रक्चर दिखेगा. इसको बोलते हैं हम डोम. ठीक है, और घुम्मट, डोम, या कभी कभी ऐसा भी होता है ओनियन शेप डोम. ओनियन शेप डोम. तो ये जो चीज थी, लाई थी सईद या सैयद डायनेस्टी. ये जो डोम, डबल डोम का टेक्निक है, एक के साथ एक डोम, एक साथ दो डोम्स लाना और बिल्ड करना, ये टेक्निक सईद या सैयद डायनेस्टी लेके आई थी. तो यही जानकारी हमारे लिए काफी है. ये जो डायनेस्टी है, सईद डायनेस्टी, वो ज्यादा नहीं चली थी. सईद डायनेस्टी कुड नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग. इस डायनेस्टी के जो लास्ट सुल्तान थे, लास्ट सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी, his name was Aram Shah. His name was Aram Shah. ठीक है, he was the last sultan of Sayyid dynasty. ठीक, he was overthrown by his commander in chief. इनको इनके कमांडर इन चीफ ने ओवरथ्रो कर दिया, उठा के फेंक दिया. उनका नाम है बहलुल लोधी. ठीक है, बहलुल लोधी कौन थे? कमांडर इन चीफ ऑफ आरम शाह. तो बहलुल लोधी ने क्या किया? आरम शाह को हटा दिया और बहलुल लोधी फाउंडेड, ही फाउंडेड द फिफ्थ एंड द लास्ट डायनेस्टी. फिफ्थ एंड लास्ट डायनेस्टी.
ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसको हम बोलते हैं लोधी डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी, जो दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी है। और हमें यह याद रखना है, लोधी जो है, लोधी एक अफगान ट्राइब है, लोधी जो है एक अफगान ट्राइब है। तो लोधी है, लोधी डायनेस्टी जो है वो दिल्ली सल्तनत की पहली अफगान डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत की पहली अफगान डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी। पहले जो 4 डायनेस्टीज आ गई, आपका स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी, सारे टर्क्स थे। खिलजी हमारे अफगान कम टर्क्स थे, लेकिन पूरे अफगान नहीं थे, ठीक है। और खिलजी एक्चुअली टर्क्स थे जो अफगानिस्तान में बसे हुए थे, इसलिए वो हमको उनको अफगान नहीं बोल सकते। तो पहली अफगान डायनेस्टी कौन सी है? लोधी डायनेस्टी, जिसके संस्थापक कौन है? बहलूल लोधी। लेकिन इस डायनेस्टी और इस घराने के सबसे कामयाब जो शासक थे उनका नाम है सिकंदर लोधी, है। सबसे जो कामयाब शासक है उनका नाम है सिकंदर लोधी, ठीक है। इनका कार्यकाल 1489 से लेके 1517, और ये लोधी घराने के सबसे कामयाब शासक है और दिल्ली सल्तनत के दूसरे सबसे कामयाब शासक है, सेकंड ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। सिकंदर लोधी इज द सेकंड ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी, आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी। तो ऐसा क्या किया था उन्होंने? तो आपको दिखेगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया और जो फिरोज शाह तुगलक ने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक इन दोनों की नीतियां इन्होंने मिक्स की थी, दोनों की नीतियां अपनाई थी, ठीक। पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी प्लस फिरोज तुगलक, he had adopted and mixed the policies of both the Alauddin Khilji and Firoz Shah Tughlaq। तो अलाउद्दीन खिलजी का हमने देखा कि उन्होंने सारे बाजार और व्यापार में सुधार किए थे, उन्होंने एक खुली बाजार व्यवस्था लाई थी, लेकिन उसमें शासन का कंट्रोल था। इतनी भी खुली नहीं थी कि किसी भी वस्तु का दाम है वो खुले बाजार में तय किया जाएगा, ऐसा नहीं था, ठीक। उसको कंट्रोल किया था। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड फ्री इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड फ्री इकोनॉमी। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? काइंड ऑफ सोशलिज्म, वेलफेयर पॉलिसीज, एक समाजवाद की नीतियां लाई थी कि सबका भला हो जाए उसमें। तो इन दोनों को मिक्स किया हमारे सिकंदर लोधी ने। और फिर हम देखेंगे कि वो इसकी वजह से भारत के दिल्ली सल्तनत के दूसरे सबसे महान शासक माने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया? जो फिरोज शाह तुगलक है उनका फ्री किचन जो है उसको और बढ़ावा दिया, फ्री किचन को और बढ़ावा दिया, है? फिर उन्होंने क्या किया? द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो फिरोज शाह तुगलक लाए थे, है? उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अभी क्या किया? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया, है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया। इसका मतलब क्या है? जिनको एक्चुअली सस्ते अनाज की जरूरत है, ठीक, जिनको सही में जरूरत है सस्ते अनाज की, कि जिनके पास पैसा नहीं है, वो बहुत ही गरीब है, उन लोगों को ये मिलना चाहिए, उन लोगों को ये मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। जो लोग अच्छे खासे घर से है, जिनके पास पैसा है, उनको ये फ्री अनाज नहीं मिलना चाहिए। उससे क्या होगा? सरकार का खर्चा बचेगा, उससे क्या होगा? सरकार का खर्चा बचेगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो ये नीति उन्होंने अपनाई थी। इन्होंने भी कृषि के रिफॉर्म्स किए हैं, इन्होंने भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए, और उसमें एक चीज दिखेगी, he brought a new land measurement unit, he brought a new land measurement unit known as गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी was a new land measurement unit introduced by Sikandar Lodhi, which became very very famous for scientific measurement of land। वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया जमीन को
अच्छी तरीके से नापने के लिए, वैज्ञानिक रूप से नापने के लिए। फिर he also provided loans to the farmers, very low cost loans. He also provided irrigation facilities to the farmers. ठीक, ये सारी चीजें कृषि सुधार में उन्होंने भी की थी। इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कृषि को बढ़ावा मिला था। और कृषि में उन्होंने और एक सुधार लाया था, उन्होंने कृषि का व्यापारीकरण शुरू किया। सिकंदर लोधी इज फेमस फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, कृषि का व्यापारीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। खास करके इंडिगो, नील जिसको बोलते नील, खास करके इंडिगो एंड शुगर केन, दो हमारे जो नगद फसल है, जो नगद पैसा हमें दे सकते हैं, ऐसी जो फसल है दो, इंडिगो एंड शुगर केन, इसको बहुत ज्यादा उत्तरी भारत में बढ़ावा दिया गया था। तो ये सारा उनका लोकप्रियता का कारण था। ठीक, लोगों के भलाई के लिए इन्होंने सब कुछ किया था। और खास करके इन्होंने क्या किया था, उन्होंने दिल्ली सल्तनत का जो फाइनेंस है, कितना पैसा आता है, कितना पैसा खर्च होता है, ये फाइनेंस मेंटेन करने के लिए एक बजट सिस्टम चालू किया था। बजट सिस्टम, बजट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस। ठीक, सिकंदर लोधी ने किया था, और उसकी वजह से जो दिल्ली सल्तनत है उसका शासन बहुत अच्छे से चल रहा था, खर्चे कम हो रहे थे, और कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ये भी पता चल रहा था। ठीक, तो ये सारी नीतियां उन्होंने अपनाई थी। और खास करके इनके बारे में और अगर बात देखेंगे तो उन्होंने कला और संस्कृति के मामले में भी बहुत कुछ किया था। कला और संस्कृति के मामले में बहुत कुछ किया था। ठीक, इनके समय में संगीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था। म्यूजिकल डेवलपमेंट्स, ठीक, म्यूजिकल डेवलपमेंट्स बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे सिकंदर लोधी के समय में। एक सिकंदर लोधी खुद एक अच्छे शहनाई के वादक थे। सिकंदर लोधी खुद एक अच्छे शहनाई वादक थे। ठीक, गुड प्लेयर ऑफ शहनाई। Okay, so under him musical developments took place, and you will see he was a very good player of the Shehnai. He was a Persian poet also. He was a Persian poet also. And he used to compose love poetry. प्रेम के ऊपर आधारित पोएट्रीज बनाते थे, कविता बनाते थे, लव पोएट्री और रोमांटिक पोएट्री। ठीक, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। फिर इनके समय में हम देखेंगे कि जो सईद डायनेस्टी डबल डोम टेक्निक लाई थी। सईद डायनेस्टी ने, मैंने बताया कि आर्किटेक्चर में या स्थापत्य शास्त्र में जो डबल डोम का टेक्निक सईद डायनेस्टी लाई थी, उसको पॉपुलर सिकंदर लोधी ने किया। पॉपुलराइज डबल डोम टेक्निक। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इनके समय में डबल डोम टेक्निक पॉपुलर हुआ, और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक नया इनोवेशन लाया। एक नया इनोवेशन लाया था, और वो इनोवेशन ये था कि जो सुल्तान और राजघराना के लोगों की टॉम होगी या कब्र होगी, उसको गार्डन के बीचों बीच बनाया जाए। एक बगीचे के बीचों बीच उसको बनाया जाए। ठीक है, टॉम्स built in the middle of garden. Tombs were built in the middle of the garden. Okay? This was a kind of innovation brought by सिकंदर लोधी। ठीक, ये सारी डेवलपमेंट्स उनके अंडर हुई थी। और एक चीज थी, इनके अंडर जितनी बिल्डिंग्स बनी थी सब ऑक्टागोनल शेप में बनी थी। अष्टकोण जो होता है, अष्टकोण या 8 कोण या एंगल्स होते हैं, ऐसी वाली बिल्डिंग्स बनती थी, इसको बोलते हैं ऑक्टागोनल्स बिल्डिंग।
ठीक है, बिल्ट ऑक्टागोनल बिल्डिंग्स। इतनी सारी कामयाब चीजें उन्होंने करके दिखाई थी। उन्होंने शासन को भी अच्छे से चलाया था, उन्होंने शासन को भी अच्छे से चलाया था, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने कला और संस्कृति के माध्यम में भी बहुत कुछ किया था, जो आज भी हम देख सकते हैं, खासकर दिल्ली में। जो उनका एक फेमस गार्डन है लोधी गार्डन, ये आपने नाम सुना ही होगा, दिल्ली में है वो लोधी गार्डन, बहुत ही फेमस है और वो सिकंदर लोधी ने बनवाया था। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हर एक लोकप्रिय शासक के साथ साथ उनकी कुछ नीतियां गलत भी होती है, उनकी कुछ नीतियां गलत भी होती है। तो वैसे हम देखेंगे, जैसा हमने देखा फिरोज शाह तुगलक, वो धर्म के मामले में बहुत कट्टरपंथी थे, धर्म के मामले में वो बहुत कट्टरपंथी थे। वैसे ही सिकंदर लोधी ये भी धर्म के मामले में कट्टरपंथी थे। बोथ फिरोज शाह तुगलक एंड सिकंदर लोधी, they were orthodox in religious matters and they were unfortunately anti-Hindus. Unfortunately they were anti-Hindus without any bias, we have to say, and their policies are clearly visible. Policies were brought more and less for all population, but yet there are many references and evidences that they were anti-Hindu in a religious matters especially, and that's why you will see both Firoz Shah Tughlaq and Sikandar Lodi, they had imposed jizya. Both Firoz Shah Tughlaq and Sikandar Lodi had imposed jizya, which is a Islamic poll tax. It is a Islamic poll tax or a religious tax, which the Hindus or a non-Muslims have to pay. ये ऐसा कर है जिसको हिंदू या कोई भी जो गैर मुस्लिम है उसको ये कर देना पड़ेगा शासन को, मुस्लिम शासक को, ताकि उनको मुस्लिम शासन की तरफ से सुरक्षा मिले, so that the Hindu person or a non-Muslim person, he or she can get a protection from Muslim government or Islamic government. So this is called as jizya, and this tax is valid under Quran. As per the Islamic beliefs, this tax is said to be valid under Quran. Okay? So this tax was brought by both Firoz Shah Tughlaq and Sikandar Lodi due to their orthodox policy. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इम्पार्शली विदाउट बायस बहुत सारी चीजें उनके पक्ष में जाती है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने, बट कुछ चीजें हैं खास करके धर्म की नीतियां वो उनकी सही नहीं थी, और जिसकी वजह से थोड़ी लोगों में नाराजगी भी थी। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन कुल मिला के हम देखेंगे कि लोगों का भला हो रहा था, दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ रहा था, समाज और अर्थव्यवस्था दोनों ही अपनी प्रगति पथ पर थे, और इसकी वजह से दोनों शासक अच्छे माने जाते हैं, प्रशासन की दृष्टि से कामयाब माने जाते हैं। और खास करके सिकंदर लोधी जो जैसे हमने डिस्कस किया अलाउद्दीन खिलजी के साथ, खिलजी के बाद वो एक महान शासक दिल्ली सल्तनत के माने जाएंगे। ठीक है, तो ये थी बहुत सारी रोचक और रोमांचक बातें सिकंदर लोधी के बारे में। और अब हम हमारी जो कड़ी है, हमारी जो सीरीज है हिस्ट्री को डिस्कस करने की, उसके आखिर में आ रहे हैं, उसको हम समाप्ति के ऊपर अभी आ रहे हैं, और उसमें हम बस ध्यान में रखना है कि दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हो गया। तो सिकंदर लोधी के बाद जो नए सुल्तान आए थे उनका नाम था इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के बाद जो नए सुल्तान आए थे उनका नाम था इब्राहिम लोधी। ठीक है, और ये जो इब्राहिम लोधी है 1517 से लेकर 1526, ये बहुत ही कम उम्र में सुल्तान बने थे, सिर्फ 23 साल के थे जब सुल्तान बने थे। तो उनके अंदर काबिलियत तो थी, वो शूरवीर भी थे, ही वॉज अ वॉरियर, ही वॉज कैपेबल रूलर, बट ही वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे, एंड दिस शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर इट became like a barrier for him to become a successful sultan. ये जो गुस्से वाला उनका ये था अंदाज या स्वभाव था, वो उनको बहुत महंगा पड़ गया। So he did not respect or he didn't used to respect his seniors. उनके जो सीनियर थे, क्योंकि वो 23 साल के थे, तो पहले से जो उनसे बड़े लोग थे जिनका अनुभव ज्यादा था, उम्र में भी बड़े थे, ठीक, बड़ा बड़ा नाम था उनके पास, उनके बहुत कारनामे और कामयाबी थी,
ऐसे लोगों को भी वो रिस्पेक्ट नहीं करता था, सबके सामने कुछ भी बोल देता था, है? सब लोग नाराज थे दरबार में। ऑल द नोबल्स एंड द मिलिट्री ऑफिशियल्स वर अनहैप्पी और डिससैटिस्फाइड एंड स्पेशली he had insulted not only all senior nobles and military officials but his own maternal uncle, his own maternal uncle जिनका नाम है दौलत खान लोधी, जिनका नाम क्या है? दौलत खान लोधी। सो ही वाज अ मैटरनल अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के जो मामा जी थे, दौलत खान लोधी कौन थे? इब्राहिम लोधी के मामा जी थे, उनको भी उन्होंने बख्शा नहीं था। और दौलत खान लोधी उस समय लाहौर के गवर्नर थे, उस समय वो लाहौर के गवर्नर थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर दौलत खान लोधी गुस्सा हो गए और उस समय मध्य एशिया में बहुत कुछ हलचल मची हुई थी। उस समय में मध्य एशिया में या सेंट्रल एशिया में बहुत कुछ हलचल मची हुई थी। बाबर who basically became the founder of मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत का पतन होने के बाद मुगल एम्पायर भारत में आ गया, तो उसके जो संस्थापक है बाबर, दिस बाबर ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ आमिर तैमूर। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, आमिर तैमूर उनके ही एक वंशज थे बाबर। सो दिस बाबर बेसिकली ही वाज द रूलर एज फार एज नॉर्थ अफगानिस्तान वाज कंसर्न। नॉर्थ अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है आज का जो नॉर्थ अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान है, अगर यहाँ का मैप देखते हैं, ठीक है, इस मैप में हम देख पाएंगे ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान आता है, यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान आता है, और यहाँ पे जो मध्य एशिया है, यहाँ पे पूरा हम देखेंगे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये जो पूरा भाग था, यहाँ पे बाबर का शासन था, यहाँ पे बाबर का शासन था। सो बाबर बेसिकली ही वाज आल्सो फेसिंग ट्रबल्स इन हिज ओन होमलैंड। अपने होमलैंड में उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और उनको उनके चचेरे भाइयों के साथ ही फाइट करना पड़ रहा था, ठीक है, और उनके चचेरे भाइयों ने उन्हें हरा दिया था, और उसके बाद तो उज़्बेक लोगों ने भी आक्रमण कर दिया था और बाबर अपना सिंहासन और अपना राज्य या साम्राज्य खो चुके थे। तो इसलिए क्या हुआ, बाबर अभी भारत की तरफ देख रहे थे, बाबर अभी भारत की तरफ रुख कर रहे थे। तो इसलिए हम देखेंगे दौलत खान लोधी हु इज अ मैटरनल अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी, ही इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। इन्होंने बाबर को न्योता दिया कि आप आइए और एक क्रूर शासक है भारत में इब्राहिम लोधी नाम का, उसको हरा दीजिए, मार दीजिए। और दौलत खान लोधी के साथ साथ भारत के और शासक थे, एक बहुत ही महान और लोकप्रिय राजपूत शासक राणा शंग, ठीक, जो हमारे महाराणा प्रताप के दादाजी है, ये राणा शंग हमारे राजपूत शासक थे। इन्होंने भी बाबर को बुलाया था। तो राणा शंग क्या देख रहे थे कि बाबर भी बाहर से आएंगे, ठीक, वो भी मुस्लिम है, इब्राहिम लोधी भी मुस्लिम है, तो हम दो मुस्लिम शासकों को लड़वाएंगे, उनमें से एक तो हार ही जाएगा, मर भी जाएगा, और दूसरा भी जीतते कमजोर हो जाएगा। फिर जो कमजोर होगा उसको मैं हराऊंगा और फिर हम राजपूतों का राज, हिंदू राज फिर से लाएंगे। ऐसी एक मंशा राणा शंग के बीच मन में थी। तो इस वजह से बाबर को न्योता दिया गया था राणा संग्राम सिंह, जिनको हम राणा संग बोलते हैं, एंड दौलत खान लोधी। एंड देन यू विल सी a very famous, one of the most famous battles took place in Indian history. One of the most famous battles of Indian history took place in 1526, April 2021. One of the most famous battles of the Indian history took place, and this battle is known as First Battle of Panipat. This battle is known as First Battle of Panipat. And this battle took place between whom? This battle took place between whom? This battle took place between बाबर एंड इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी जो दिल्ली के आखिरी शासक है, मतलब दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक है,
वो इब्राहिम लोदी और बाबर, इनके बीच ये संग्राम हुआ, एक युद्ध छिड़ गया है, एक जंग हो गई और बाबर ने इब्राहिम लोदी को सिर्फ हराया नहीं, मार गिराया है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को सिर्फ हराया नहीं, मार गिराया। ओके, और हमें ध्यान में क्या रखना है, एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको पूछी जाएगी कि इब्राहिम लोदी भारत के मतलब दिल्ली के एक ही शासक है जो युद्ध में मारे गए हैं। अगर हम पूरी दिल्ली की हिस्ट्री देखते हैं, भारत की हिस्ट्री देखेंगे, तो दिल्ली में अगर कोई एक शासक मारा गया सुल्तान होते हुए या राजा होते हुए या सम्राट होते हुए, तो सिर्फ इब्राहिम लोदी है, सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम लोदी। दिल्ली के ऊपर बहुत सारे शासक आए चले गए लेकिन कोई मारा नहीं गया था, ये चीज। तो बाबर जो है बाहर से आए थे, मध्य एशिया से, उन्होंने इब्राहिम लोदी को मार दिया, हरा दिया और मार दिया, और फिर हम देखेगा दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर laid the foundations of Mughal empire in India. So definitely I am sure that all these 5 discussions classes, okay, which we had a tremendous interaction, very fruitful interaction, and I have seen that all of you were equally excited, okay, equally engaged in all these discussions. So definitely I am sure now, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी हिस्ट्री समझ में आई होगी जो भी हमने 5 क्लासेस में डिस्कस की है। और ये हिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से समझने बाद है, हिस्ट्री में आपको दिलचस्पी भी आएगी, और आपको और नई नई बातें पता चलेगी, एंड देन you will be able to master the history as a whole, the whole history of India. Okay, so again I will look forward to have the interaction with all of you in the future. Till then I would like to take the leave of all of you. Thank you very much. Have a good day.